Pakistan today faces a whole host of political and economic challenges. Amidst these surmounting problems, the nation braces for another general elections. These elections have attracted widespread debate from all sections of society, where some have touted this to be the silver bullet that will miraculously solve all of Pakistan's problems, while others believe that the manner in which these elections are conducted will create further chaos and political instability. However, one point of view remains missing from the entire political discourse, and it is this: whether the political system that we hope to bring about as a result of these elections holds any real value for the challenges that Pakistan faces today. Whether the parliamentary system of government that we hope to bring about will hold any real value for our country and our polity. Assalamu alaikum, everyone, and welcome to another episode of Paradigm Shift Interview Series. And in this episode, we will try to explore this very question: does parliamentary system of government hold any value for the challenges that Pakistan faces? Or should we be looking to another model of government that can perhaps be better suited to our country and our society? Joining me today is Dr. Sadiq Ali, a renowned engineer who has worked all across the globe and also a very vocal critic of the Pakistan system of government. He has written extensively on policy, and he's also written directly to Chief Justice of Pakistan, to the President, and to the Prime Minister's office, imploring upon them to rethink the political system that we have today. Please welcome a very proud citizen of our country, Dr. Sadiq Ali. चलिए सर, firstly, thank you so much for taking out the time. I'm sure आपका बहुत busy schedule चल रहा होता होगा. आपने हमारे लिए time निकाला, so thank you for that. पाकिस्तान के लिए और इंसानियत के लिए मैं हमेशा बिल्कुल. And I think, sir, this couldn't have come at a better time कि we are now just a few, in fact, just a day away from the elections. क्या बनता है इन elections में, क्या इनकी कोई value है भी कि नहीं, इसके ऊपर जरा एक अच्छी discussion होगी. तो sir, let's just begin with what is your point of view on what is perhaps the greater political challenges that Pakistan faces today? The greatest political challenge is sovereignty. Basically, क्या आप किसी दूसरे मुल्क की कॉलोनी बन के रहना चाहते हैं, या आप वो वाला पाकिस्तान बनाना चाहते हैं जिसके लिए अल्लामा इकबाल ने कहा था कि आप चाहे घास खा लें, लेकिन किसी के हाथ अपने अपने जो वो है, आपके इख्तियार है, वो ना किसी को. Yes, sir. ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है किसी भी नेशन के अंदर. जी सर. अलमिया ये रहा कि हमने बाय डिजाइन फौज को हमेशा टारगेट किया. उसकी बुनियादी वजह ये है फौज को टारगेट करने की कि हम ये नहीं बताते कि फौज को इन द फर्स्ट प्लेस लेके कौन आया था. आपने कभी आज तक सुना कि मोहम्मद अली जिन्ना ने कोई आइन लिखा था? कभी बताया किसी? नहीं, किसी ने नहीं बताया. नहीं बताया. अब जब आइन नहीं आप बताएंगे कि मोहम्मद अली जिन्ना ने लिखा, तो लोग सोचेंगे कि एक आदमी ने पाकिस्तान बनाने की इतने कई दहाइयां जुस्तजू की और वो इतना नासमझ था कि उसने आगे क्या करना वो नहीं बताया. ये बिल्कुल वही बात है कि हम अपने बच्चों के लिए कोई वसीयत ना छोड़ के जाएं. बिल्कुल ऐसी है. और बच्चे बाद में फिसाद करते पड़े, ये भी ना पता चले बच्चा है किसका. I hope you understand. Yes, what sir. I'm saying. Yes, sir. The point is, मोहम्मद अली जिन्ना wrote a constitution. अगर हो सके तो आप लोगों को डिस्प्ले करके दिखा दीजिएगा. जी बिल्कुल, हम इसको नीचे मोहम्मद अली दे जिन्ना ने हाथ देंगे. से लिखा. जो हमें जो सिटीजन आर्काइव पाकिस्तान के अंदर से कहीं गहराइयों में पड़ा हुआ था. वो मैं देखिए, I had to go to the archives department इस्लामाबाद. उन्हें मैंने खत लिखा डायरेक्टर को, ये एक इस किस्म का लेटर मुझे पता चला है मोहम्मद अली जिन्ना का. अल्लाह का शुक्र है उन्होंने इनकार नहीं किया. हाँ. But I was not allowed to see that. ठीक है, उन्होंने कॉपीज उनके, क्योंकि डायरेक्टर साहब नहीं थे, उनके असिस्टेंट थे, डॉक्टर साहब, उन्होंने बड़ा कोऑपरेट किया, उन्होंने दिया. उन्होंने कहा सर मजबूरी है कि जिन लोगों के पास चाबियां हैं तो वो आर्काइव डिपार्टमेंट की डबल की सिस्टम होता है. अच्छा. कि आप जो है वो
बिकॉज ऑफ द सेंसिटिविटी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। तो लेकिन ये तो शीशे के अंदर करके प्रिजर्व करके ये तो हमारे उसमें लगाने चाहिए थे, ताकि कौन को पता तो चलता। बिल्कुल। हमें ये बताया ही नहीं जाता कि जिन लोगों ने हमारे लिए जाने दी, जिन लोगों ने लिए हमारे मेहनत की हमारे लिए, वो हैं कौन लोग, उनका वो करना क्या चाहते थे। अब मोहम्मद अली जिन्ना ने जब फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान लिखा, 10 जुलाई का ये लेटर है 1947, यानी पाकिस्तान बनने से पहले की बात है। और वो फोकस करते हैं पहले ये जब मैं इसको मैंने पढ़ा और इसका तज्जिया किया, तो ये वो टाइम है जब प्लेबिसाइट हो गया है और ये तय हो गया है कि कौन से इलाके जो हैं वो हिंदुस्तान के साथ जाएंगे, कौन से पाकिस्तान के साथ आएंगे। बिल्कुल ठीक है। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये मीटिंग हो रही है कांग्रेस के अंदर, और ये वहां पे बैठे हुए मोहम्मद अली जिन्ना बैठे हुए और स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, जो हालात और लोगों के ख्यालात महसूस कर रहे हैं उनको वो देख रहे हैं और लिख रहे हैं साथ, और लिख रहे हैं कि इंडियंस the Congress has accepted the president's settlements with mental reservation। यानी आप ये देखिए कि वो इस बात को हम तक पहुंचाना चाहते हैं कि जिन लोगों के साथ वो लड़ लड़ के हमारा मुल्क हमें लेके दे रहे हैं, उन लोगों के जहन में क्या है। बिल्कुल ऐसी है उस वक्त, वरना तारीख में चीजें कैसे आती, बिल्कुल ऐसी है। तासुरात कैसे पता चलते, लोगों की अंदर की बातें कैसे पता चलती। सही बात। तो मोहम्मद अली जिन्ना पहला पॉइंट लिखते हैं, द कांग्रेस हैव एक्सेप्टेड द प्रेजेंट सेटलमेंट्स विद मेंटल रिजर्वेशंस। फिर दूसरा पॉइंट लिखते हैं, they now proclaim their determination to restore को अंडरलाइन करते हैं, restore the unity of India as soon as possible। मतलब पाकिस्तान को एक टेम्परेरी फोर्स समझ रहे थे। Do you understand कि वो लिख क्या रहे हैं? वो लिख रहे हैं जो जिस हालत में इस वक्त पाकिस्तान है, इतना कमजोर कर दो कि दुश्मन इस पे फतह कर ले। जी सर। तीसरा पॉइंट वो लिखते हैं, with that determination को फिर अंडरलाइन करते हैं, they will naturally be regarded as about enemies of Pakistan state working towards its overthrow। overthrow को 3 दफा अंडरलाइन करते हैं। और फिर टाइटल लिखते हैं फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, और पहली जो लाइन लिखते हैं डेंजर्स ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम। Why I call the first legislative assembly as the traitors of Pakistan is exactly what Muhammad Ali Jinnah said, खोटे सिक्के। You recall? उनके अक्सर हम ये बातें सुनते हैं, बिल्कुल तो खोटे सिक्के हैं दूसरे में। तो ये वो खोटे सिक्के थे जो पहली लेजिस्लेटिव असेंबली में आके बैठ गए थे। मोहम्मद अली जिन्ना की सबसे बड़ी बात ये है कि इनके बुजुर्ग अंग्रेजों के नमकबार नहीं थे। मुसलमानों के साथ और हिंदुओं के साथ गद्दारियां करके इनको जागीरें नहीं मिली थी। जिन लोगों को मुतालिक वो कह रहे थे खोटे सिक्के, वो तमाम वो लोग थे जो खानजादे, नवाबजादे, फलाजादे, ये जादे, वो जादे थे, जो आज भी बैठे हैं कहीं ना कहीं। Exactly. Now you have to देखिए आप, हमारी नेक्स्ट जनरेशन, जो इल्म मैं आज आपको देकर जाऊंगा वो इल्म आप आने वालों को बताएंगे जैसे हमारे बुजुर्गों ने। लेकिन 1400 साल से जिस दीन से हम ताल्लुक रखते हैं, हम इसी तरह से सीना भी चीजें भेज रहे हैं और लिख भी रहे हैं। बिल्कुल ऐसी लिखी हुई चीजें सिवाय कुरान के कोई लिखी हुई चीज ऑथेंटिक नहीं है जब तक कि उसकी सच्चाई वक्त ना साबित कर दे। अब मोहम्मद अली जिन्ना की इसके ऊपर भी लोग कह सकते हैं, उन्होंने लिखा है भाई डेंजर ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम का हाल तो हम पाकिस्तान में देख रहे हैं कि क्या हुआ। तो ये सबूत है इस बात का कि जो उन्होंने लिखा था वो बिल्कुल सही लिखा था। जी मैंने पिछले दिनों आपके यहाँ एक आर्टिकल पब्लिश किया, पाकिस्तान नेशन लॉस्ट इन ट्रांसलेशन। जी बिल्कुल सर, मैं उसी की तरफ आ रहा था कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस पे आपने एक बात की थी, उसने जो आपने इस चीज के बारे में बात की थी उसको थोड़ा सा एलैबोरेट करें। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि मैं इसलिए ये बात समझा रहा हूँ कि मुझे ऐसे ऐसे फनी किस्म के कमेंट्स जस्टिस साहिबान के सुप्रीम कोर्ट के मिल रहे होते हैं कि मैं हैरान होता हूँ कि ये जस्टिस हैं, उन्हें जूरिस्प्रूडेंस का नहीं पता।
ठीक है। हम्म एक जस्टिस साहब ने कहा कि पार्लियामेंट इज सुप्रीम। लेकिन उनको ये नहीं पता कि पार्लियामेंट इज नॉट सुप्रीम। हमेशा अदल सुप्रीम होता है। यस अदल सुप्रीम होता है तो अदालत सुप्रीम होगी। आपको बात समझ जी आई जी है? जी जी मैं आपको कोरिलेट करता हूं इसको एक आसान सी मिसाल से। आपने अपना घर बनवाना है तो आप आर्किटेक्ट से अपनी मर्जी के मुताबिक घर बनवाएंगे। हम्म लेकिन घर बनाने का पहला स्टेप है कि नक्शे के ऊपर ये चीजें बना ली जाए। हम्म वो ड्राइंग पास होती है कवानीन के साथ। आप जब ड्राइंग आपकी फाइनल हो जाती है, उसके बाद फिर तामीर। आपको दो लोगों को चाहिए होता है, एक इंजीनियर चाहिए होता है, एक ठेकेदार चाहिए होता हम्म है। इंजीनियर आपको काबिल चाहिए ताकि वो ड्राइंग्स को पढ़ सके, हम्म और ठेकेदार चाहिए ताकि आप उससे ड्राइंग के मुताबिक बनवा सकें। बिल्कुल ऐसी है। ठीक हो गया? क्या ठेकेदार अपनी मर्जी से ड्राइंग्स को बदल सकता है? नहीं बदल सकता ना। हाँ वरना उसका कॉन्ट्रैक्ट कंडीशंस जो है वो बिल्कुल समझता मुझे। ऐसी, बिल्कुल ऐसी है। तो ठेकेदार नहीं बदल सकता। इंजीनियर जो है, क्योंकि उसने सर्टिफिकेशन लिया है अपनी काबिलियत का इस फील्ड के अंदर, तो हम उसकी अथॉरिटी को मानेंगे और उसकी जिम्मेदारी है कि वो ड्राइंग के मुताबिक बने। जी इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। नहीं। अब इसको हम पाकिस्तान और पाकिस्तान के लोग और पाकिस्तान के आइन और जुडिशरी के फ्रेमवर्क में रखते हैं इसी मिसाल को। आपका जो नक्शा है वो है करारदाद मकासिद। हम्म करारदाद मकासिद है प्रीएम्बल, बिल्कुल या जिसे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन भी कहा जाता है। बिल्कुल ऐसी है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का जो जो आप पढ़े उसे, तो उसमें लिखा है देयर शैल बी डेमोक्रेसी, हम्म जस्टिस, फ्रीडम। बिल्कुल ये लिखा है। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, ऐसे ही लिखा है। अब हम आते हैं कि जब आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली हो गई ठेकेदार, जिसको बनाने के लिए कौम ने नक्शा बनवाया, वो नक्शा बन गया प्रीएम्बल। ठीक है। बनवाना किससे है? ठेकेदार से। बना कौन रहा है? लेजिस्लेटिव असेंबली हो गई ठेकेदार। हम्म जो अब क्योंकि कानून की किताब लिखी जानी है, लिहाजा कानून क्वालिफाइड कौन है? अदलिया। हम्म अदलिया ये बताएगी ठेकेदार को कि कहां ड्राइंग के खिलाफ तुम गए हो, इसे रीडू करो। इट्स दैट लीगल वॉचडॉग जिसने इसको। इट इज द लीगल वॉचडॉग। जी। नाउ द लीगल वॉचडॉग डिड नॉट डू देयर ड्यूटी, हम्म because the legal watchdog did not they didn't understand English the way the English was supposed to be known, like Mohammed Ali Jinnah, सही जिसने अंग्रेजों का कानून पढ़ा और अंग्रेजों को उसी कानून में हरा दिया। सही। ठीक है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम यह है, माय मदर वाज नॉट एन इंग्लिशमैन। हम्म हम तो इस तरह की अंग्रेजी बिल्कुल बोलते हैं ना ऐसे। हाँ हाँ हाँ। कि माय मदर वाज नॉट एन इंग्लिशमैन। हम्म इंग्लिशमैन समझ आ रहा है? मेरी माँ जी जी थोड़ी होगी, और होगी बिल्कुल ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम तो इस तरह की इंग्लिश बोलते हैं। फिर हमारे ऊपर हमें वक्त ये सवाल है कि हमने मैट्रिक के अंदर 10 नंबर का सवाल किया था ट्रांसलेशन का, इंग्लिश टू उर्दू या उर्दू टू इंग्लिश, इसलिए हमें इंग्लिश आती है। हाँ ये राइट टू अंडरस्टैंड में जो कह रहा हूँ। जी। आपका आर्टिकल पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन ये कह रहा है, गालिबन पहला या दूसरा आर्टिकल है, इस्लाम वुड बी स्टेट रिलीजन। हम्म आर्टिकल 2A जो है वो आपका प्रीएम्बल है। हम्म जब आपका प्रीएम्बल या ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आर्टिकल 2A हो गया, तो 2B जो है वो इसको खिलाफ नहीं हो सकता, बिल्कुल ऐसी उसके है। लाइन होना चाहिए। बिल्कुल। ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है, जो मैंने आपको लेटर भेजे हैं, जो पब्लिश भी हुआ है आपके मैगजीन में भी, बिल्कुल जो मैंने चीफ जस्टिस को लिखा है, तमाम जस्टिस को लिखे हैं, कोई चीज जस्टिस ये नहीं कह सकता कि मैं बरी जिम्मा हूं। हम्म दे आर सपोज टू बी जुडिशियल पब्लिक सर्वेंट्स। यस अगर एक शहरी पाकिस्तान का जुडिशियल पब्लिक सर्वेंट को एक लेटर भेज रहा है और वो कौम के हक में है, तो क्या जस्टिस को उस पर अमल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? दे शुड डेफिनेटली रिस्पॉन्ड टू इट। लाइक उसको देखना चाहिए, उसको एक्सप्लोर करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। आप उसके अंदर इतनी लंबी लिस्ट दें, पाकिस्तान का कोई शख्स नहीं है जिसको मैंने एड्रेस नहीं किया उसमें। फिर क्या वजह किसी है? एक में भी
सर क्या वजह है, व्हाई उसकी डोंट दे वजह रिस्पॉन्ड? ये है, शरीक के जुर्म ना होते तो मुखबिरी कर। वेरी ट्रू। ठीक है। हम्म। अब मोहम्मद अली जिन्ना ने, कमिंग बैक टू दैट, कि अब आपको ये बात समझ आ गई कि आर्टिकल 184(3) जो कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट को ये कहा गया है कि वो इंटरप्रेट करेंगे आइन को, इसका मतलब क्या हुआ? ठेकेदार नहीं बताएगा कि मैंने इसको चेंज कर दिया, ठेकेदार तो डंडी मारता ही है। मैंने एक डिफरेंस वो लिखा, डिफरेंस बिटवीन अ लीडर एंड अ पॉलिटिशियन। उसमें मैंने ये लिखा है कि पॉलिटिशियन जो होता है वो ठेकेदार होता है, उसका फायदा है तो वो काम नहीं करेगा। सर तो लेकिन लीडर जो होता है वो पॉलिटिशियन पॉलिटिक्स जानता है, लेकिन पॉलिटिशियन लीडर नहीं जानता। सर इसके अंदर अब आपने एक बात की थी, जो आपके लेटर्स भी थे, मैं उसके लिंक्स भी यहाँ पे शेयर करूंगा ताकि हमारी ऑडियंस भी उसको खुद देख सके। उसमें एक ये था कि आपने बात की थी कि पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वो, आप जो है ना, किंगडम्स छोटे छोटे बना लेते हैं लोग। इट्स अ डेमोक्रेटिक फ्रॉड। अच्छा। अच्छा सर, एक इसमें पहले आप मुझे इसका बताएं कि इसका क्या मतलब है। साइंटिस्ट, आई एम द ओनली सोशल साइंटिस्ट आई कैन कॉल इट। मैं वैसे तो अदरवाइज आई एम ऑब्वियसली मैं इंजीनियर, इंजीनियर हूं, पीएचडी हूं, तो मैं रिसर्च इसीलिए करता हूं। देखिए, हल्का बंदियां जो है ना, क्या ऐसा मुमकिन है कि पाकिस्तान के किसी दो हल्कों में एक ही जितने वोटर्स हो? नहीं। नहीं हो सकता। या अब हम एक आसान सी मिसाल ले लेते हैं। जिस हल्के में आप रहते हैं उस हल्के में 2 लाख वोटर हैं। जिस हल्के में मैं रहता हूं उसमें 1 लाख वोटर है। ठीक है। मैं 1 लाख वोट पूरे लेके असेंबली में चला गया, आप भी पूरे 2 लाख वोट लेके असेंबली में चले गए, लेकिन आपको ये पता ही नहीं चला कि आपके यहाँ से 2 एमएनए असेंबली में आने चाहिए थे, क्योंकि अगर 1 लाख से 1 एमएनए आ रहा है तो 2 लाख से 2 आने चाहिए। तो सर फिर ये मसला तो आपका डिलिमिटेशन का ज्यादा नहीं होगा? लाइक, मैं आई एम बीइंग अ डेविल्स एडवोकेट हियर, आई एम बीइंग अ डेविल्स एडवोकेट। या Be the या devil's advocate. यस। Because if he will not be, हाँ। this discussion is not going to bring out anything positive. यस यस। तो इसमें यहाँ पे तो फिर जो जो आपने पॉपुलेशन की बात की, बिल्कुल एक ही इसके अंदर होता है, तो वहां पे तो फिर डीलिमिटेशन एक्सरसाइज के ऊपर दोबारा गौर करने की जरूरत है कि वो ठीक से हो रही है कि नहीं हो रही। How do you define delimitation exercise? मतलब जो delimitation का लफ्ज इस्तेमाल किया है तो जी, अपने ऑडियंस को बताइए आपका इससे मतलब क्या है। देखिए, डीलिमिटेशन इज बेसिकली जब आप बेस्ड ऑन दी रिलेटिव पॉपुलेशन, मेरे नज़दीक, अगर मैं गलत हूँ प्लीज़ मेरी इस्लाह कीजिएगा, लेकिन मेरे नज़दीक डीलिमिटेशन इज के बेस्ड ऑन दी पॉपुलेशन साइज, उसके हिसाब से वहाँ के जो नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उसको डिसाइड करना चाहिए। अगर मैं गलत हूँ तो मेरी इस्लाह जरूर कीजिएगा। देखिए देखिए बात सुनिए। सबसे पहली बात यह है कि आपने एक रिलेटिव प्रोपोर्शन की बात की थी जी। पॉपुलेशन की। प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन इज डेमोक्रेसी। बट अगर 1 लाख से 1 आदमी आ रहा है तो 2 लाख से 2 आने चाहिए कि नहीं, इसे प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। बिल्कुल। क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो 2 लाख के हल्के के अंदर रहने वाले लोगों के वोट की वैल्यू आधी रह जाएगी। बिल्कुल ऐसी, बिल्कुल ऐसी, ऐसा ही है ना? बिल्कुल। तो ये बिल्कुल है, ये इस केस के अंदर। तो अगर आपके बुनियाद ये पहली चीज ये कह रही है देयर शैल बी डेमोक्रेसी, तो क्या डेमोक्रेसी में सारे अडल्ट्स का वोट वैल्यू एक नहीं होनी चाहिए? इक्वल एडेड फ्रेंडशिप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। नाउ पहले उस लीडर ने कहा था जो कानून को बेहतरीन जानता था। He wrote dangers of parliamentary बिल्कुल, system yeah. because the parliamentary system has brought us to this filthy situation that none of the politicians is sincere to the country or to the people. सर अब इस सिचुएशन से जो एक आइडियल फॉर्म है, या रिलेटिवली बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, अगर प्रेसिडेंशियल फॉर्म गवर्नमेंट की तरफ जाया जाए, तो वो सफर कैसे तय करें? बिकॉज आप मेरी इस बात से तो एग्री करेंगे कि इतनी ज्यादा डिवीजन हो चुकी है। हमें ये पता होना चाहिए why presidential form. जी सर, पहले उसका उसके ऊपर Presidential form is more closer to sensible approach of management. ओके। You cannot have 2 leaders in one army. You cannot have 2 CEOs. Yeah. अच्छा, सीईओ अपनी कंपनियों का जब इन सियासतदानों ने लगाना होता है तो दुनिया का बेहतरीन आदमी चाहिए।
जी सर। ठीक है ना? तो जो पीआईए को बिठा दे और अपनी एयरलाइन खड़ी कर ले। देखिए ना, हमारे यहाँ गेम क्या है? हमारे यहाँ गेम ये है कि जब मुझे अपनी एयरलाइन चलानी है तो दुनिया का बेस्ट आदमी चाहिए, पीआईए चलानी है तो एक ऐसा चोर ले आएंगे फ्रांस से जो जाते हुए आपका जहाज भी ले जाएगा। See, do you see the sincerity with the purpose of the job they are trying to impose on us? ये हलफ लेते हैं कुरान पे। मैं आपको लिख के दे सकता हूं, ये अल्लाह पे ईमान रखने वाले होते। एक आदमी जो रोजे जगह पे ईमान रखता है वो जुर्रत करेगा किसी की कोई चीज चोरी करने? नहीं। तो मुनाफिकून कुरान में इसलिए मौजूद है ताकि जब तक कयामत नहीं आती, अगर आपने देखना हो कि मुनाफिक कैसा होता है तो उसके फेल और कॉल में तजाद देखेंगे आप। जिस आदमी कॉल और फेल में तजाद है वो मुनाफिक है, और क्योंकि वो मुनाफिक है, मोमिनीन को चाहिए कि मुनाफिकों से दूर रहे। सर अगर एक थाली में सारे ही वैसे ही हैं तो उसमें से फिर कैसे चुना जाए? फिर थाली को नए लोग कहाँ से लेके आ जाए? वो भी तो इधर से निकालने हैं ना। We were trying to set up the system. आप मुझे गाइड कर रहे थे। आपको अपना काम आता है। आपके जगह पॉडकास्ट मैं नहीं कर सकता, बिकॉज आई एम नॉट ट्रेन्ड फॉर दैट। मुझे ये बताइए कि कौन सा सियासतदान दुनिया की किस यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया है जिसे ये पता हो कि पॉलिसी मेकिंग क्या होती है, पब्लिक पॉलिसी कैसे बनाई जाती है, आइन कैसे लिखा जाता है। इस आइन के अंदर एक आर्टिकल है, आर्टिकल 8। आर्टिकल 8 अगर किसी को समझ आ जाए, जो मैंने लेटर में भी लिखा है चीफ जस्टिस को, आर्टिकल 8 ये कहता है कि कोई रियासत कोई ऐसा कानून नहीं बनाने देगी जो इंसानी हुकूक के खिलाफ हो। और साथ वो लिखती है आगे, अगर ऐसा कानून बन जाए, अब बन जाए, बना देने वाले कौन है? ठेकेदार, लेजिस्लेटिव असेंबली। अगर बन जाए तो जिस हद तक वो इंसानी हुकूक के खिलाफ होगा वो नल एंड वॉइड होगा। तो अगर उन्होंने पार्लिमानी निजाम रख दिया हल्का बंदियों के साथ, तो क्या ये जमहूरियत की नफी है? जमहूरियत की नफी है तो क्या इंसानी हुकूक की नफी भी है? डेमोक्रेटिक फ्रीडम और ह्यूमन फ्रीडम। जी। जब इंसानी हुकूक की नफी है तो नल एंड वॉइड हो जाएगा पार्लिमानी निजाम के? नहीं सर, बिल्कुल आपकी रीजनिंग ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे इफ आई इंटरजेक्ट, अगर हम लेट्स से अगर एक ऐसा सिस्टम रखें, अगेन आइडियलिस्टिक के पार्लियामेंट्री सिस्टम है जिसमें सही तरीके से प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन हो जाए, तो फिर क्या पार्लियामेंट्री सिस्टम काबिल कबूल है या नहीं? देखिए बेटा, मैं एक इंजीनियर हूँ, और फेडरल लॉज जो इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्टिंग लॉज हैं उसके अंदर एक प्रोसीजर है, वो हमारे यहाँ भी इस्तेमाल होता है। आप इस्लामाबाद में बैठे हैं, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल चले जाइएगा, उनके चेयरमैन शायद मुझे जानते भी हैं, उनको सलाम कहिएगा, उनसे कहिएगा कि जी जरा बताइए कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो पेनल्टी क्लॉज होता है वो क्या होता है, या कंप्लीशन क्लॉज क्या होता है। बुनियादी तौर पे जब एक इंजीनियर एक प्रोजेक्ट लेता है तो उसको बजट के अंदर रहते हुए, और देखिए मैं जो बात कर रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बजट में रहते हुए क्वालिटी को कंप्रोमाइज किए बगैर डिजाइन के मुताबिक दिए हुए वक्त के अंदर उस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करना। अगर वो दिए हुए वक्त में क्वालिटी कंट्रोल के मुताबिक नहीं प्रोजेक्ट कंप्लीट करता तो उसके रिस्क एंड कॉस्ट के ऊपर तमाम प्रोजेक्ट मुकम्मल किया जाता है। Okay. दूसरी चीज होती है प्रोजेक्ट बनाने से पहले कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस ये कहता है कि आप जिस प्रोजेक्ट को लगाने जा रहे हैं, क्या इसको लगाने से आपको फायदा होगा या नुकसान होगा। मोटरवे पे जो लोग बहुत चीखते हैं, मोटरवे का कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस नेगेटिव में था। तो ये प्रोजेक्ट बनाना चाहिए था, मतलब बेस्ड ऑन दैट तो नहीं बनना चाहिए था, लेकिन अब बात तो बहुत सारे लोग से बात लेकिन
अगर कोई पढ़ा लिखा आदमी आपने प्राइम मिनिस्टर बनाया होता तो वो कहता ये मुझे क्यों बेवकूफ बना रहे हो, तो मेरे सामने प्रोजेक्ट ले हो, तुम अपने मुल्क में लगाओ प्रोजेक्ट, मेरे मुल्क में क्यों लगा रहे हो, विच इज नॉट कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस को क्वालिफाई नहीं करता। अब पार्लिमानी निजाम में अगर हम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से ले आते हैं बहुत सारे एमएनए असेंबली में, तो इस वक्त 500 से 700 अरब रुपया इनका सालाना खर्चा है। फिर कितने, तो जब जो लोग कह रहे हैं कि और सूबे बनाओ, जो लोग कह रहे हैं कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से पार्लिमानी निजाम चलाओ, आपके पास वसाइल ही नहीं है इतने सारे शहजादों को पालने के लिए। सो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के हिसाब से क्या पार्लिमानी निजाम कामयाब होगा? नहीं होगा। बिल्कुल है। आईएमएफ क्या कह रहा है कि सियासतदानों अपने खर्चे कम करो। काश वो किसी लीडर से कहते, तो लीडर जो है, जैसे अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ लीडर एंड अ पॉलिटिशियन? नाउ चीफ जस्टिस इज अ लीडर ऑफ his team, his institution. Army chief is a leader of his institution. It is the responsibility of the judicial leadership to make sure that the administration in Pakistan must do positive projects which can bring prosperity. आर्मी चीफ का काम नहीं है, वो क्या डॉलर स्मगलिंग का आरोप करने वाले पकड़ लो, ये पकड़ लो, वो पकड़ लो, ये आर्मी चीफ का काम नहीं है। आपकी बात समझ आ गई है, सेपरेशन ऑफ पावर बहुत जरूरी है। बेचारगी क्या होती है? बेचारगी ये होती है कि मैंने कहीं घर को साफ करने के लिए रखा है, वो साफ नहीं कर रहा, तो मेरी बेचारगी ये, मुझे काम भी करना और घर भी साफ करना। सर, तो जब एक आदमी के ऊपर मुसल्लत कर दिया जाता है, मैं आमतौर पे लोगों को समझाता हूँ, 9 साल पहली आइन साज असेंबली ने गद्दारी की पाकिस्तानी कौम के साथ। वो सिर्फ जो इवैक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी थी वो अपने नाम लगाते रहे। ठीक है, 9 साल के अंदर उन्होंने आइन बनाया। इंडिया इतना बड़ा मुल्क है, उसने 1 साल में आइन बना के 1950 में एनेक्ट करके कॉन्स्टिट्यूशन 1 साल में बनाया, 49 में एनेक्ट किया, 50 में हमसे सीधा हो गया। हमारे तो 9 साल हरामखोर बैठ के खाते रहे। और उन्होंने जो आइन 56 में जाके, वो सिकंदर मिर्जा ने कहा कि तुम्हें जो मना किया था पार्लिमानी निजाम जो है वो पॉजिटिव नहीं है, और तुम एक दूसरे टांगे हर वक्त खींचते रहते हो, तुम मुल्क के लिए कुछ नहीं करोगे। वो लेटर पढ़िए ना, जी जी, जो सिकंदर मिर्जा ने जो है वो पब्लिश किया, तो भेजा था जी। तो मजबूरन उसको फिर प्रेसिडेंशियल फॉर्म के ऊपर 2 साल में उसने जल्दी से आइन बनाया। सदारती निजाम के अंदर में फिर कोशिश की, जो भी हुआ के जब आप आर्मी को बुलाते हैं कि हेल्प करें, तो आर्मी के पास एक जवाब ये आता है कि अगर इन अनपढ़ लोगों को तुमने पैसे देके वक्त जाया करना है, तो इससे पढ़े लिखे तो हम ज्यादा हैं। मुझे बताइए, कोई आर्मी चीफ अंगूठा छाप आया आज तक? नहीं। भाई भी जो है वो कम से कम आजकल एफए में आता है। सर, एक पॉलिटिशियन जो जिसने मुल्क को चलाना है, हाँ, कुरान ये कह रहा है, जो इल्म और जिस्म में मुस्तफा है उसे क़यादत दो, ये कुरान कह रहा है। अगर ये इस्लामिक स्टेट है, अगर ये कुरान पे चलने वाली रियासत है, तो इसके अंदर किसी चोर, उचक्का, बेईमान और इनकेपेबल आदमी को लीडरशिप देना गुनाह कबीरा है। इसकी वजह बता देता हूँ क्यों गुनाह कबीरा है। जब एक आदमी खुदकुशी करता है अपने बच्चों को मार के, क्योंकि उसके यहाँ खाना नहीं है उसके पास, तो ये गुनाह कबीरा वो अपनी मजबूरी में कर रहा है, या रियासत के अंदर जिन लोगों को जिम्मेदारी थी काम करने का कि उनकी खुशहाली देते, उन्होंने उनको उसको नहीं दी, मजबूर किया रियासत की जिम्मेदारी। जो भी पाकिस्तान में जराइम हो रहे हैं, अमवात हो रही हैं, खुदकुशियां हो रही हैं, इसकी जिम्मेदारी उसके ऊपर है जो अपने आप को मुल्क का मुक्तदर आला कहते। सर, जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की जो बात होती है कि प्रेसिडेंट एक यूनिफाइड लीडरशिप होनी चाहिए, दैट्स वेरी ट्रू, लेकिन यहाँ पे एक सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान की जो 75 साल हिस्ट्री के अंदर बहुत सारी लिंग्विस्टिक और एथनिक ऐसी आइडेंटिटीज आई हैं जो वक्फन फवक्फन जो है पोलिटिसाइज भी हुई हैं, और आज जब एक काफी डिवीजन है विद इन सोसाइटी, तो क्या एक यूनिफाइड लीडर इमर्ज कर सकता है इन द 21st सेंचुरी प्रेजेंट डे पाकिस्तान के अंदर? देखिए, जिस तरह एक मुनाफिक की शनाख्त ये है कि उसके कौल और फेल में तजाद हो। हर
मुसलमान को ऊपर ये वाजिब है कि वो इल्म हासिल करे हर मर्द और औरत के ऊपर, इसमें कोई शक तो नहीं है। बिल्कुल कोई शक नहीं। इसीलिए ताकि आप देख सकें कि एक आदमी आज कुछ बोल रहा था, कल कुछ और कह रहा है। हम्म। तो कम से कम हम लोगों को, रियासत ने तो लोगों को नहीं पढ़ाया, हम्म। लेकिन लोगों ने जैसे तैसे करके पढ़ लिया। अब बच्चे जो हैं और आपकी कौम और आपकी नस्ल में, आपके एज ग्रुप में लोगों को कम से कम ब्लैक एंड व्हाइट नजर तो आता है ना, हम्म। लेकिन देखिए कि किसने कितना बड़ा गुनाह किया है। मैं इमरान खान को शायद सपोर्ट करता, लेकिन ही रूइंड द कंट्री। यू नो व्हाई आई एम अगेंस्ट हिम? ये भी बता दें सर। बिकॉज ही, हाँ, क्योंकि उन्होंने जो वादे किए उसके खिलाफ उन्होंने काम किया। उन्होंने कहा मैं शेख रशीद को चपरासी भी नहीं रखूंगा, उन्होंने उसे वजीर दाखिला बनाया। मुझे शेख रशीद से इख्तिलाफ नहीं है, उनका अपना एक अंदाज है सियासत करने का। लेकिन मैं इमरान खान की कमेंट की बात कर रहा हूँ। व्हेन यू बिलिटल पीपल, वॉच आउट व्हाट यू से। फिर उन्होंने कहा कि मैं दुनिया भर से बेहतरीन लोगों को लेकर आऊंगा ताकि मुल्क को बेहतर तरीके से चलाएं। अब वो बेहतरीन लोग कौन थे आप देखिए, ये मैंने लिख के दिया है ताकि डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री रहे, हम रहे ना रहे, लोगों को पता होना चाहिए किसने क्या किया। I had to write this and submit it in the court. Imran Khan laces a law graduate as Minister Science Technology in a country जहां पे Nobel laureates मौजूद हैं। यानी एक लॉ ग्रेजुएट को आप मिनिस्टर साइंस एंड टेक्नोलॉजी लगा रहे हैं, आप एक मेडिकल डॉक्टर को मिनिस्टर आईटी लगा रहे हैं, और आप एक कॉमन ग्रेजुएट को मुल्क का सबसे बड़ा सूट दे रहे हैं। These are perfect recipes for disaster. मैं जब ये उन्होंने कहा ना मैं ऐसा जबरदस्त लेकर आऊंगा, सुबह मैंने कहा पता नहीं किस आदमी को माशाल्लाह बड़ा क्वालिफाइड होगा, देखा तो पार्टी टच हुआ। तो जो इससे भी ज्यादा बड़ी गलत काम किया उन्होंने, आपके स्टेट बैंक को उन्होंने जो है वो खुद मुख्तार कर दिया। सर स्टेट बैंक ऑटोनॉमी में मैं भी 1 मिनट में आऊंगा, इस चीज को थोड़ा सा मैं वापस उसमें आऊंगा कि अब जिस करंट एक मेस के अंदर हम हैं, हमने इससे निकलना है और एक एक बेहतर सिस्टम की तरफ जाना है। तो अब और सोसाइटी के अंदर बहुत ज्यादा इनइक्वालिटी भी है, इनइक्विटी भी है, इकोनॉमिक इनइक्विटी भी है, और सोशल लाइन पे भी डिवीजन है। तो इस केस के अंदर किस तरीके से एक ऐसा यूनिफाइड लीडर निकाला जाए जो कि इन तमाम सेक्शंस को यूनाइट भी करे, और वो उसका अपना मोरल कैरेक्टर भी इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि वो मुल्क को जो है सही रास्ते पर लेके चले। देखिए, मुझे फौज अच्छी इसलिए लगती है क्योंकि उसके अंदर कोटे के अंदर भर्तियां नहीं होती। If you are capable, if you can qualify the test, if you can, qualify the ISSB, everybody is given a chance. ठीक है, आप अच्छे हैं, आपका अच्छे परफॉर्मेंस एंड प्रोग्रेस। ये जो जैसे ये सियासतदान अपने प्राइवेट बिजनेसेस में लोगों को प्रमोट करते हैं, तो सलाहियतों पे करते हैं ना। सलाहियत जो है कौम डिजर्व नहीं करती है कि सबसे बेहतरीन आदमी हो, जिसका किरदार अच्छा हो, जो सच बोले, जिसमें काबिलियत हो, जिसको ये पता हो कि अगर ये प्रोजेक्ट हमारे फायदे के लिए, हमारे नुकसान के लिए, आपने एटम बम बनवाना होता है तो आपको बहुत काबिल आदमी चाहिए। आपको उस मुल्क को जिसके पास एटम बम है उसको संभालना हो तो आपको एक अनपढ़, बेकार, बेईमान, चोर, उचक्का चाहिए। तो सर फिर तो जर्नैलों को इलेक्शन में उतरना चाहिए फिर तो। नहीं सर, मैं जर्नैलों के इलेक्शंस की बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूं कि आपके यहाँ एक पब्लिक सर्विस कमीशन है। वो पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो जॉब जब खाली होती है जॉब की एडवर्टाइजमेंट करता है। ठीक है, एलिजिबिलिटीज हैं, तो ये काम एक प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए या चले। इस इलेक्शन का तो कुछ नहीं बनेगा, इस इलेक्शन से वही चोर उचक्के वापस आएंगे जिन्होंने इस मुल्क में, इस हाल में मुल्क को पहुंचाया। जी, फूड फॉर थॉट द पीपल जो मुल्क के साथ सिंसियर। जी सर, सो वी आर ऑन द लास्ट मिनट नाउ, वी आर इन द लास्ट मिनट। उनको मैसेज दे रहा हूं जी। तो आप ऐसे बेहतरीन लोगों को लेकर आइए जो आपकी मईशत के मुकाबले में, आपके खुशहाली के मामले में, मोहम्मद अली जिन्ना ने यही अरिस्टोटल का वो लिखा था कोटेशन, स्टेट एग्जिस्ट नॉट फॉर लाइफ ओनली बट फॉर गुड लाइफ। तो अब जब आप किसी को
मुल्क देते हैं तो उससे कहें कि तुम अब इस मुल्क की खुशहाली की जमानत तुम्हारे दबाव। अपने जाती असाद के अगेंस्ट। मैं गारंटी दे रहा हूँ ना, जी। मैं कह रहा हूँ कि भाई अब मैं अपने आधे असासे पाकिस्तान के गरीबों को दे दूंगा, चाहे मेरे पास 1,000 रुपए या 50,000 रुपए, लेकिन मैं ये गारंटी दे रहा हूँ जी सर। कि अगर आप मेरी बताई हुई पॉलिसी, ये इमरान खान को भी मैंने गारंटी दी थी। आप ये पूछ रहे थे कि तरीकाकार क्या है। इसका तरीकाकार ये है कि जो भी पाकिस्तान की खुशहाली की जमानत है, आप प्रेजेंटेशन लें, शॉर्टलिस्ट करें, लोगों को इनवाइट करें, लोगों को उनसे कहें भी कौन अपनी पॉलिसी ग्रुप हो या पॉलिटिकल पार्टीज हो, आप उन सबको इनवाइट कीजिए, ठीक है। उसके बाद आप उसका शॉर्ट लिस्टिंग करें। आपके पास एलिजिबिलिटी में होना चाहिए कि लीडरशिप जो है वो पढ़ी लिखी की होगी, कम से कम मास्टर्स हो, अगर पीएचडी नहीं है। दुनिया में उससे ऐसा पीएचडी में क्यों कहता हूँ, पीएचडी एक्चुअली आपको बरतानिया में तब मिलती है व्हेन यू हैव एडेड समथिंग न्यू टू द नॉलेज वर्ल्ड। तो नॉलेज वर्ल्ड में जब तक आपने कुछ नया ना ऐड किया हो, दुनिया के सरबराहान आपको सुनने के लिए तैयार नहीं होते, ठीक है। आप जब किसी फोरम पे बात करते हैं तो आपके 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 पास इतना इंटेलेक्चुअल एसेट होना चाहिए कि आप जब बात करें तो लोगों को पता हो कि इसको सुन के हमें फायदा होगा, हमें इसकी बात माननी चाहिए, ठीक है। तो दुनिया में उसकी कोई इंटेलेक्चुअल स्टैंडिंग होनी चाहिए। नंबर 2, उसके पास प्लान होना चाहिए। आप कई कई सदियों से, सालों से, दहाइयों से आप हुकूमत कर रहे हैं और आप फिर आप आके कहते हैं कि हम तो सीख रहे थे कि हुकूमत कैसे की जाती है। इट इज नॉट ऑन जॉब ट्रेनिंग। देखिए, कुदरत से सीखिए कि कुदरत क्या कर रही है। कुदरत जो है वो कुन फयकून, जब उसने कर दिया सब कुछ बन गया। अब उसने क्या किया, आपके पास पॉलिसी जो होती है ना, पॉलिसी वो एक बीज की तरह होती है। आप ये नहीं कहते अब आप आके बनाएंगे पॉलिसी, नहीं, आपके पास पॉलिसी मौजूद होनी चाहिए। जब आपको इक़्तिदार दिया जाए, 1 हफ्ते के अंदर वो पॉलिसी आप सिस्टम में इंजेक्ट कर दें। 3 महीने से के अंदर अंदर आपको ये पता चलना शुरू हो जाएगा कि ये पॉलिसी जो है वो खुशहाली की तरफ ले जा रही है, बर्बादी की तरफ। मैं क्यों कहता हूं कि 3 से 6 महीने पहले, मैं 3 महीने 100 डेज का जो मैंने लिखा था, आपको लेटर पढ़िएगा जो मैंने इमरान खान को लिखा था। जो लोग इमरान खान से बहुत प्यार करते हैं वो कहते हैं कि हो सकता है इमरान खान को ना मिला हो, तो चले नहीं मिला होगा। अगर आपको मैं खत पोस्ट करता हूं और आपके घर पे ऐसा चौकीदार बैठा है जो आपके खत फाड़ के फेंक देता है, तो इसमें कसूर आपका है कि मेरा? सही बात है, आपकी जिम्मेदारी बनती है। क्योंकि हाँ, तो आपको अपने आसपास ऐसे लोग रखने चाहिए ना जो आपके साथ वफादार हो, मुल्क के साथ मुखलिस हो। अगर आप मुल्क के साथ मुखलिस हैं तो क्या आप अपने आसपास ऐसे लोगों को रखेंगे जो 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 चीट करें आपके साथ? ऑब्वियसली नहीं। नाउ व्हाट आई वांट टू कन्वर्ज टू दैट क्वेश्चन, आंसर टू दैट क्वेश्चन जो आप कह रहे हैं। अब जब आपने ये सब कुछ कर लिया तो फिर आप प्रेजेंटेशंस करवाएं, put them through a presentation. Before putting them to the presentation, आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज जो है वो क्वालिफाई करें इस बात को कि जी इनमें से कौन लोग जो हैं वो वाकई पाकिस्तान के वफादार हैं, फॉरेन एजेंट्स नहीं। सही, ठीक है। जब आपने ये कर लिया, एलिजिबिलिटी हो गई, उनके एसेट्स आपने देख लिए, उनका आपको पता चल गया वो कौन है, पीपल ऑफ सब्सटेंस जिन्हें मैं कहता हूँ, पीपल ऑफ सब्सटेंस। जब वो लोग हों, उसके बाद आप उनको जो आपको इस वक्त मौजूदा मुश्किलात आपके पेश नजर है ना, आपके मुल्क को, हमारे मुल्क को पड़ी हुई है, आप वो सवाल उन्हें दीजिए। हर एक को ब्लाइंड सवाल वो दीजिए, क्या जी ये लिस्ट है, इसका जवाब ले आइए, फला दिन प्रेजेंटेशन होगी। वो प्रेजेंटेशन सबको सुनाइए और वहां से डायरेक्ट वोटिंग के थ्रू प्रेसिडेंट को लीजिए। राइट। अब उसके बाद आपने आइन में कुछ चेंजेस करनी है। आइन में से कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट निकाल दीजिए। मैंने तो चीफ जस्टिस को यहां तक कहा कि मुझे बताओ, मैं अब तुम्हें हेल्प कर देता हूं, हाउ टू गेट रिड ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने जो आपको एनोलॉजी दी है कि जिस तरह आप घर और ठेकेदार और नक्शे को लेकर चलते हैं, अब बताइए क्या जो इंजीनियर है वो अथॉरिटी होगा ठेकेदार पे, या ठेकेदार कहेगा जो मैंने बनाया सही है, तुम गलत कह रहे हो? तो अदलिया जो है वो सुप्रीम है।
अदलिया किसी भी कानून को, लेजिस्लेशन को वो प्रीएम्बल के पैराहे में देखेगी। अगर वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से तजाद में है तो अदलिया के यू कांट डू इट। आपको याद है 18 साल से पहले मजहब बदलने वाला जो एक बिल पास हो गया था, जी जी एक्सक्यूज मी जी, तो वो कहाँ जाके फंसा था? अदालत ने कहा कि इंसानी हुकूक के खिलाफ है। तो अगर पार्लियामेंट सुप्रीम होती तो पार्लियामेंट कहती टू हेल्प विद यू, ये लगे बनेगा कानून। तो अदालत को जब तक, अदालत देखिए अल्लाह की सबसे बड़ी सिफ्त है इल्म, और उस इल्म की बुनियाद पे वो अदल करता है। अदालत जो है उसका काम होता है दोनों फरीकों से केस के मामले में इल्म लेती है, उसकी रोशनी में फिर वो फैसला करती है। यहाँ तो केस ही सुना नहीं जा रहा कौन का। सही बात है। नहीं, दिस मेरी इज 2 केसेस की है, तो जो तीसरी इमरान खान से नाला हूँ, इसलिए नहीं कि मेरी कोई जाति वो है, इसलिए क्योंकि उन्होंने कौम के साथ गद्दारी की है। प्ली बार्गेन कानून जो था, प्ली बार्गेन कानून का आपको पता है? आप उसकी वजाहत कर दें। कानून ये है कि मैंने 1 अरब रुपया चोरी कर लिया है कौम का या किसी का, खास तौर से कौम का, एज अ पॉलिटिशियन जी जी, मैंने पैसा चोरी कर लिया है, तो उससे 10-15% मैं आपको 10-15% वापस दे दूं तो बाकी 80% चोरी हलाल हो जाएगी। ये कानून ठीक है क्या? नहीं। Will this legislation not promote crimes? इट डज ये प्रमोट। चोरी क्यों नहीं करते? इसलिए क्योंकि आपने उनको कानून, उनके जराइम को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दिया हुआ है। तो मैंने सितंबर 2021 में केस किया प्ली बार्गेन लॉज के खिलाफ, और मैंने इमरान खान को डायरेक्ट पार्टी बनाया। ही वाज द गवर्नमेंट, he did not come and stand with me कि ये प्ली बार्गेन लॉ खत्म कर दो। क्या उसकी जिम्मेदारी नहीं थी कि मैं एक चीज को मशवरा दे रहा हूँ सही करने का, आप उसके साथ खड़े नहीं हो रहे? जी सर, तो ये देखिए, मेरा जाती अनाज किसी के साथ नहीं है, लेकिन मेरी कौम को बेवकूफ बनाना छोड़ दो। मेरा मुल्क है, मैं पाकिस्तान का पासपोर्ट रखता हूँ, और मैंने अभी तक मेरे पास पाकिस्तान ही का पासपोर्ट है। और मुझे बड़ा शर्म आती है जब हम इंटरनेशनल उसमें फिरते हैं तो हमें अलहदा कर लिया जाता है। जी सर, वेरी एम्बैरेसिंग। ये जिल्लत हम अपने बेगैरत सियासतदानों की वजह से उठाते हैं। जी सर। सर तो जिन लोगों के पास इख्तियार है उनसे मेरी ये गुजारिश है कि वो लेजिस्लेशन में एक छोटा सा ऐड कर दें कि अगर 3 से 6 महीने में आप मुल्क के मैशत को बेहतरीन नहीं कर सकते या मजबूत नहीं कर सकते, रुपया मजबूत नहीं होता, तो आप खुद स्टेप डाउन कर जाएं एक बाकिरदार इंसान की तरह। ये लेजिस्लेशन ले आएगी। जिस दिन ये लेजिस्लेशन ले आएगी, मजबूरन इनको परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। मेरिट बेस्ड सिस्टम होगा। So this is the solution. This is the solution for a prosperous Pakistan. किसी को चाहिए तो मुझे बताएं। Thank you so much, sir. Thank you, Dr. Sadiq. आपने you took time out from your schedule और आपने हमें time दिया. I'm sure our viewers at the Paradigm Shift, our community, would also benefit greatly from this podcast. And to everyone who's watching it through social media, please, we will leave the links for the letters that Dr. Sadiq has written to various heads of the state. And they should also go through them. They can also visit a lot of work that he has written for Paradigm Shift and other places. With this, we will conclude this podcast with this hope that somewhere, somehow, somebody will in power who is sincere with our country can take heed from this discussion and take steps that can lead Pakistan to a better future. Thank you once again, sir, for your time, and thank you to our community for watching. Till next time, Allah Hafiz. जी सर, हमारे पास बहुत पैसा है मुल्क को बेहतर करने के लिए। थैंक यू सो मच सर, अपना ख्याल रखिएगा, एंड टू आवर कम्युनिटी, टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज।